Hello, everyone. Today I have a guest who is a living legend of the Indian label industry, holding the legacy of his grandfather, which has started almost 10 decades ago, pioneering in transfer labels. Let's welcome Sri Rajesh Chadda, Managing Director of Update Prints India. Chadda Saab, Namaskar. Thank you very much, Welcome Amit to my Sheth. show. It's my pleasure, and I'm very happy to be here with you. Thank you. And it's my first podcast. I was not very much, conversant with this. Absolutely. Not an issue. Yes, We'll make you comfortable. yes, yes, We'll make you yes. comfortable. You Yeah, relax and we yeah. Thank continue. you very Yeah. much. Yeah. So I heartily welcome you first for my show. Thank you very much. And to start with, tell me about yourself, your journey from your childhood till now, whatever you remember. I Yeah, mean, my journey started actually. I was my grandfather by the name of P.C. Chadda, Prithvi Chand Chadda. okay. He started this thing, this printing business of making transfer labels. Okay. At that time, transfer labels used to be used for either railway coaches, swing machines, and then the people who, travel by tangas, they just Ah, beautify from all this, their sides, yeah, yeah. Victoria's and Victoria Victorias, Falls. this. Ah, Those okay. are all transfers. Oh, okay. So my grandfather, just went over to Japan, Kobe, and he was there for almost like I would say maybe 20 years or so. Your grandfather My traveled to grandfather, Japan? yes, he was there. He was there He only. was there. He just comes and go to. Okay. I'm talking of that Pakistan. But while our whole family was in Pakistan, Okay. we got Partition के time. partition से पहले की बात है ये. हाँ जी, हाँ जी. And he was there, and then he used to get the transfer labels made over there from some companies, and then they send it to my dadi ji, my अच्छा. grandmother over there in Rawalpindi, Oh. then in Pakistan, or now in Pakistan. हाँ हाँ. And then my dadi was a very good, I would say, in the market. हाँ. मार्केटिंग में उनका जवाब नहीं था. अच्छा जी. सो वो अगर कहते हैं ना 2000 सेट बेचते थे वहाँ से, तो शी सेज आप 2000 क्यों भेज रहे हो, आप 4000 भेजो, अच्छा. आप ज़्यादा भेजो ताकि मैं इसको बेच पाऊँ. ओहो. वो कहते थे कि इसका रेट 1 रुपया होगा, तो हम्म. वो बेचती थी 1.5 रुपये का. क्या और उनको बात है. बोलती जब वापस आते थे अपने जापान से, तो बोलती ये 1.25 रुपये का बिका है मेरा, और 25 पैसा अपने पास रख लेती थी फॉर द गुड डेज. Yeah, of course, of course, of course. So after that, my grandfather, when this partition happened in 1947, he came over to India, and we were into transfer label business. And the transfer label business, one has to be very, very, technical, and it's very specialized kind of thing, because moisture, humidity, that their role in the making of labels is very important. So first he went to Bombay, Pune, but the temperature, that humidity was there. So whatever he used to print over there, he just brought one machine with him Oh, is it at so? that time. Okay. That was cylinder letter press. Uh-huh. And then he brought lithographic machine. Okay. But first he brought that cylinder press, and he started this in this Pune. But the Pune climate was not Suiting. good. It wasn't suitable for the transfer labels. Then he shifted his business to, I would say, in Jalandhar somewhere. But Jalandhar was not very much at that time, इतना ज़्यादा वो Developed. उसमें developed नहीं था. हाँ. Then he shifted to Delhi. Delhi. In Delhi, then lot of things, he started as this thing in, from the house, the same machine what he brought from that Japan, he just put it in the house, and he started making it. At that time we didn't have the power even, so we used to have that roller Uh-huh. from the side of the machine, हाँ. और मशीन रोलर से मशीन चलती थी. So that means the machine was meant to run by power also as Power well as also. manually. Yes, in Japan they run it by power. They run by power. But you had here an in option to run by manually. because there was very scarcity of electricity Correct, in India, correct, in India at correct. that time. Yes, I'm yes. talking of 47, 48. Go, हाँ, correct.
तो उस वक्त फिर वो हाथ से चलते थे, तो हाथ से भी वो काफ़ी, क्योंकि जवान होते थे यहाँ पे हिंदुस्तान में, जवानी काफ़ी लोगों की होती है, तो स्पीड बकायदा वो जैसे कहते हैं ना बिजली की स्पीड होती है, उस स्पीड से वो चलाते थे। और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया, और क्लाइमेट दिल्ली की सूट कर गई, बिकॉज उसमें थोड़ा सा एक तो ह्यूमिड भी थोड़ा होता है, बट ड्राइनेस है ड्राइंग जो होती है अच्छी होती है उसके अंदर। सर्दियों में प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि ट्रांसफर जो होता है दैट इज ऑलवेज एयर ड्राई, you can't put it in the oven, because once you pass it through the oven, the second color will be very difficult to print, because the paper gets shrinked or something like that. तो उस वक्त फिर ये अपना दिल्ली का जो क्लाइमेट था अच्छा लगा, तो फिर वही होता था कि गर्मी तक जितना माल निकाल सकते हो निकाल लो। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वी आर आई मीन एट द मोमेंट ऑल्सो इन इंडिया वी आर हैविंग 9 रेलवेज, जैसे वेस्टर्न रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है, ऐसे वी हैव 9 रेलवेज इन इंडिया. So on each and every bogie you see that one a big label with the name भारतीय रेल, Yes. और उसके बीच में से गाड़ी निकल के आ रही होती है, correct. और नीचे 4 स्टार 5 स्टार बने होते हैं। करेक्ट। तो वो उसके हमें वो मिलते थे, क्या कहते हैं, अपना टेंडर्स भरने पड़ते थे हर डिफरेंट रेलवे के, लेकिन कोई वो नहीं था कि भाई 10,000 5,000 ऐसा कोचेस बनती थी, रीपेंट होती थी, तो रीपेंट कोचेस के अंदर उसमें कितना बना लेते होंगे हमको, कोई 1,000 मांगता था, कोई 500 मांगता था, कोई मतलब 2,000 मांगता था मैक्सिमम। लेकिन ये भी कंस्ट्रेंट बड़ा था कि हम ये नहीं था कि अगर कोई मांगता था हमसे 5,000 तो हम 5,000 दे सकते थे, ऐसा भी नहीं था। हमारे पास प्रोडक्शन भी थी, हो सकती थी, लेकिन हम रेलवेज का काम करते थे, साथ में ही स्विंग मशीन का काम करते थे, और उसके साथ फिर हम आप पोस्टल वैन्स के ऊपर देखते हैं सत्यमेव जयते के 3 लेबल लगा होता है, जो 3 शेर बने होते हैं, इतना बड़ा लेबल होता है वो, तो वो भी हम बनाते थे। तो लेकिन क्या होता था, लाइसेंसिंग राज था सारा उस वक्त, तो वी यूज्ड टू गेट द लाइसेंस फ्रॉम CCI, चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ओके। तो हमें लाइसेंस भी कितना मिलता था, अंदाजन मे बी 30,000 35,000 का, मतलब कोटा सिस्टम था, एंड लाइसेंस होता था। ठीक है। और उस वक्त द ड्यूटी यूज्ड टू बी 280%। ओ गॉड, 280%? 80%। इट यूज्ड टू बी द ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। और फिर ये नहीं था कि हम 30,000 से ज़्यादा का माल मंगा लें, कुछ ऐसा नहीं था, उतना ही लिमिटेड था, लेकिन पैसा हमने कमाया क्योंकि लिमिटेड था। और सारे हिंदुस्तान के अंदर वी वर जस्ट आई थिंक मे बी 2 or 3 people. My grandfather. I was not at that time. I was supposed to ask this question only. No. उस समय और कौन था? I born and brought up in 56. तो मेरा उसके अंदर कोई रोल नहीं था अभी, और ये सब मेरे ग्रैंडफादर और फादर। लेकिन एक बस यही प्रॉब्लम हमें आती थी कि मटेरियल जो था ना, वो फिर लोग क्या करते थे, लोगों ने लाइसेंस बनवाने शुरू कर लिए। तो जहाँ से मिलता था, बॉम्बे वाले ने कहा मेरे पास पड़े हैं 3 रिम की भी कीमत इतनी होती थी, बिकॉज 500 का एक रिम होता था, तो 1500 शीट हो गई। और अगर 30-40 की है तो अच्छा है, 20-30 की है तो कम होता था। तो पीपल दोज हु डोंट आई मीन प्रिंट, दे यूज्ड टू सेल इट इन द ओपन मार्केट टू फेच अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो ये चलता रहा जी, कोई काफ़ी देर चलता रहा ये। और मेरे फादर ने ज्वाइन कर लिया था, काफ़ी पहले ज्वाइन कर लिया था, लेकिन माई फादर हैड अ प्रॉब्लम दैट ही वाज अस्थमेटिक। ओके। तो सर्दियां स्टार्ट होते ही उनको ना यूज्ड टू हैव सो मच अस्थमा प्रॉब्लम कि वो फिर इतना ज़्यादा उनको अस्थमा हो जाता था कि वो ज़्यादा उनकी कफ बहुत निकलती थी। तो मेरे दादाजी थे, वो चाहते थे कि मैं काम को बढ़ाऊँ नहीं आगे। बट मैं आफ्टर 56 then I bond up to 72 when I was in I just finished my schooling. I had interest, solid interest in the same business. At that time we used to have almost 3 presses in our factory, and the area of that press was not more than, I would say, maybe 1,200 feet or something like that. We used to do so many things over there. And I tell you one thing, because this is a kind of very, मतलब इसमें ना बहुत ज़्यादा एक टेक्निकल और एक ऐसी चीज़ें होती थी जो लोगों को बतानी नहीं होती थी। इवन हमारे घर की औरतें भी उसमें काम करती थी। ओहो, क्या बात है। अच्छा।
मे बी बिकॉज योर दादी यूज टू वर्क एट दैट्स अ रीजन. नहीं, ये नहीं, ओके. उसमें एक ऐसा मतलब चीज़ होता था कि वी जस्ट वांट टू हाइड द प्रोसेस। हाँ. ओके. 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 अब स्विंग मशीन पे आपने देखा होगा, पुरानी मशीनों पे काली मशीनें होती थी, बिल्कुल. ठीक है, बिल्कुल. चमक कितनी होती थी लेबल के ऊपर, बहुत चमक होती. गोल्डन चमक कितनी होती थी। अब चमक कैसे बनती थी, अब आप तो बता ही सकता हूँ बिकॉज अब तो इट्स लॉन्ग टाइम बिकॉज आई एम नॉट अब तो मेकिंग इट। हाँ, करेक्ट. अब आप मानेंगे कि हम यूज टू प्रिंट इट ओवर ऑन द मशीन, उसको हम अस्तर के अंदर एक शीट के ऊपर, फिर उसके ऊपर एक क्राफ्ट पेपर रखा, फिर शीट, फिर क्राफ्ट, शीट क्राफ्ट, उसको वी यूज टू ब्रिंग इट एट होम। अच्छा जी. उसके बाद आप जो बर्फ़ी के ऊपर वर्क लगाते हैं, वर्क लगाते हैं ना जो ऊपर, यस. यस. तो हमारे घर वाली जो औरतें थी वो डब्बे बने हुए थे बड़े बड़े, उसके अंदर एक एक शीट को खोलती थी और उस पर वर्क जो होता था उस पर चिपकाती थी, फिर रुई से ऐसे ऐसे करके साफ करती थी, उसमें चमक आती थी, उसके बाद फिर हम उसको दोबारा रिप्रोसेस करते थे, देन वी सेल इट टू द स्विंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स. तो एक टेक्निकल एक ऐसा उसमें बीमारी भी होती थी, जो लोग फिर उसमें हम गोल्ड पाउडर का इस्तेमाल भी काफ़ी करते थे। जब गोल्ड पाउडर का इस्तेमाल करते थे तो फिर वो जो लोग लड़के करते थे तो वी यूज टू गिव देम अ लॉट ऑफ गुड़, ताकि वो जो अंदर चला जाता है, इनहेल करते थे, अच्छा. वो फिर निकल जाए किसी तरह। ओह, इज इट? हाँ, ओके. प्रॉब्लम भी थी उसके अंदर काफ़ी, टीबी की प्रॉब्लम भी होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन हम बड़ा ज़्यादा ख्याल रखते थे हमारे, बिकॉज माई दादाजी ही वॉज मतलब पॉइनियर काइंड ऑफ थिंग, वो वहाँ उन्होंने सारा जापान में सीखा था, तो उनको पता था क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, किस तरह करना चाहिए। तो वो पूरा उनको पूरा मास्क डलवा के या पहले कपड़ा पूरा डलवा के फिर रात को उनको कहते सिगरेट पियो, अच्छा जी. अपना गुड़ खाओ, हम्म. समझ आई ना। तो इस तरह करते करते हमारी ये चलता गया। अरे वाह. और मैंने फिर ये क्या हुआ 71-2 के अंदर मैंने ज्वाइन जब किया, ज्वाइन मैंने नहीं किया, मैं कॉलेज में जाना था, पर माई फादर वॉज नॉट वेरी एक्टिव इन द बिजनेस। तो मैंने फिर चोरी छिपे जाना शुरू कर दिया, बिकॉज माई ग्रैंड फादर वॉज वेरी रिलेक्टेंट, वो नहीं चाहते थे कि काम को हम आगे बढ़ाएं, बिकॉज लुकिंग इन टू माई फादर्स हेल्थ, यू नो। करेक्ट. और मैं बहुत शरारती बच्चा था जी, अच्छा. मैं शुरू से ही शरारती बच्चा था। स्कूल के अंदर बैक बेंचर भी समझ लो, और पीएचडी कर लेते थे हम हर क्लास में, पास कहते हैं आप जैसे हायर सेकेंडरी की तो पीएचडी हो गई हमारे लिए, पास हायर सेकेंडरी विद डिफिकल्टी, यस. तो बड़े लोग तो खुश होते थे, तो हम भी खुश हो गए यार, 52% मार्क्स आ गए हमारे। तो ये था कि कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को मेरे पे विश्वास नहीं था, ही वॉज नॉट हैविंग एनी ट्रस्ट। उन्होंने फादर को बोल दिया, भाई देख, माई फादर एंड माई ग्रैंडफादर दे वर पार्टनर्स। उन्होंने कहा यार, मैं, मेरे फादर ने नारायणा के अंदर एक जगह डीडी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक जगह अलॉट करवाई, तो मेरे दादाजी अड़ गए, वो कहते हैं भाई मैं तो काम नहीं करूँगा। अब मेरे फादर के, मेरे तो बेटे हैं, 2 बेटे हैं, एक छोटा भाई भी मेरा पैदा हो गया था, तो वो मेरे से 8-9 साल छोटा था, तो ये भी अब बड़ा है, उसको मैं कैसे करूँगा, कोई काम तो देना ही है इनको, सही है. ये बदमाश हो जाएंगे सारे ये। मैं बोर्ड बहुत था, हर चीज़ में बहुत बोर्ड था, मतलब कोई लड़ाई होनी तब तो मुझे मल्ले वाले चल भाई राजेश, ठीक है. तो पहुंच गए वहाँ पे जाके। तो अब इसको किसी ना कहीं काम तो लगाना है, बिल्कुल. तो हमने फिर जी, वो हमारे फादर ने क्या किया, उन्होंने कहा, हमारे ग्रैंड फादर ने कहा जी मैं पार्टनरशिप मेरी कैंसिल, तू प्रोप्राइटरशिप ले ले इस कंपनी की। दैट कंपनी नेम वाज पीसी चड्डा एंड कंपनी। ठीक है. तो मेरे फादर ने कहा कि यार ये अगर पार्टनर ये हट जाएंगे तो मैं फिर कैसे करूं। कहते नहीं, आई गिव यू लिबर्टी, you make a proprietorship company, you apply on behalf of proprietorship, you whatever you want to do, you may do it, but I'm not part of it। ठीक है. मेरे फादर ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, हमने 5-550 गज का एक प्लाट हमने अप्लाई कर दिया, मिल गया। अच्छा. मिल गया तो अब मेरे ग्रैंडफादर, बाय द टाइम ही वाज नियरिंग टू एज 71-72, तो उनका इंटरेस्ट तो कम होता जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता, और उनको ये पता था कि मैं तो बदमाश लड़का हूँ, ये तो इसको तो काम में फ़ायदा नहीं तेरे को लाने का, ये तो कुछ करने वाला नहीं, निकम्मा है ये। तो 74 में माय ग्रैंडफादर पास हो गए। अच्छा जी. तब तक मैं कॉलेज में था, तो मैंने अब फादर को बोला कि भाई अब ज़मीन जो पड़ी है इस पर आप फैक्ट्री बनाते हैं।
और फैक्ट्री बनाने के लिए पैसा चाहिए था। 600 गज़ की 550 गज़ की फैक्ट्री बनानी उसको कौन सी आसान काम था। और हम ना शुरू से ही ना एक बड़ा हमारी लाइफ में ये था कि हमारे ग्रैंडफादर भी कहते थे बेटा लोन नहीं लेना। मेरे फादर भी वही लोन नहीं लेना, और फिर वो मेरे में भी आदत पड़ गई लोन नहीं लेना। तो फिर अमित जी हमने ना आधी फैक्ट्री बनाई, वो 600 गज पे आधी फैक्ट्री बनाई। ठीक है। ये आधी फैक्ट्री बना के एल शेप फैक्ट्री बना दी जानबूझ के। थोड़ा मैं तेज़ था कि बाहर से तो लगे पूरी बनी हुई है, दोनों साइडें बनी हुई है, पीछे लॉन बना दिया। अच्छा। बाहर से लगे पूरी बिल्डिंग बना दी है, फर्स्ट क्लास हो गया, ये पूरी बिल्डिंग है। तो हमने फैक्ट्री बना दी, काम हमारा अभी हमारी जो प्रेस थी वो दैट वाज इन पटेल नगर। हमारे पास जहाँ हमारी पहले चल रही थी वहीं चल रही थी, वहाँ हमने शिफ्ट नहीं की। ठीक है। तो ये बनती गई 76 के अंदर। सो आई हैड अपॉर्चुनिटी टू गो टू अमेरिका। अच्छा, ओके। फॉर हायर स्टडीज? नहीं, नॉट फॉर हायर स्टडीज़, जस्ट फॉर ऑन अ टूरिस्ट वीज़ा। ओके। पहले मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, लेकिन जो मेरी बुआ थी उसने कुछ मेरे फूफा जी जो थे वो कहते हैं यार उनकी क्या मजाल है, रिजेक्ट कर दे, मैं बैठा हूँ मैं करवाता हूँ, ठीक है उसको। उन्होंने कुछ एक्सप्रेशन ऐसी दी कि भाई मैं आई एम स्टेइंग देयर फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 20 years or so, and he has a knowledge of renting and everything, so I just want to come back for my best, गुड। तो मैं अपनी यहाँ वहाँ से मशीन लाना चाहता हूँ, एंड ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। तो इसको मैं लेके इसलिए जाना चाहता हूँ। उसको कहीं वो वर्जीनिया कार्सन थी कॉन्सुलेट, उसको समझ आ गई। आपको नाम भी याद है वो रिजेक्ट के बाद वैसे मिलता कहाँ वीज़ा था। सही बात उसने फटाक से वीज़ा लगा दिया, कहती मिस्टर सूरी, मेरे जो फूफा जी थे, यू प्रॉमिस विद मी दैट ही इज़ गोइंग टू कम बैक। प्रॉमिस। चलो जी, हमारे को वीज़ा मिल गया, हम तो चल रहे लगे, वीज़ा मिल गया। तो ये बात है 76 की। तो 76 के अंदर मैंने जब वहाँ गया तो हमें तो शौक था पहले कि भाई पिक्चरें देखें। वो VCRs वगैरह होते थे हिंदुस्तान में, VCR तो 4-5 आदमियों के पास दिल्ली में पूरे होते थे। तो हमने जाके, हमारी सिस्टर के बुआ जो थी वो सिस्टर की तरह ही थी, क्योंकि मेरे सिर्फ 5-6 साल 7 साल बड़ी थी। अच्छा। तो हमने जाके उनका स्टोर होता था साड़ी एम्पोरियम ऑफ न्यूयॉर्क, साड़ीज बेचते थे वो। और मेरे जीजा जी ही यूज्ड टू वर्क विद दिस कोडक। अच्छा जी। कोडक नहीं, सॉरी, कोडक। तो वो अपना चले जाएं सुबह सैर कर, अपना क्या कहते हैं दुकान पे, और मैं अपना पिक्चर देखूं, कभी मुगले आजम और कभी सारी जितनी उनकी टेप्स थी सारी हमने पूरी रेट मार। ऐसे वन फाइन मॉर्निंग जस्ट आफ्टर टेकिंग माई बाथ, मैंने येलो पेजेस खोलने शुरू कर दिए। उसके येलो पेजेस होते थे वहाँ पे, यहाँ तो नहीं आए, हिंदुस्तान में नहीं आए थे, आया बाद बहुत बाद में आए थे। तो मैंने ऐसे येलो पेजेस खोलने शुरू कर दिए। तो मैंने कहा यार देखो, ये ट्रांसफर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कौन कौन है, कैसा है यहाँ पे काम शाम चलता है। तो एक ना वहाँ पे कंपनी थी क्वींस के अंदर बाय द नेम ऑफ नोवा ट्रांसफर्स। मैंने उनको फ़ोन कॉल किया। अच्छा, कॉल किया तो वो इंग्लिश का एक्सेंट आपको पता ही है, उस ज़माने में हमारा और उनका कितना फ़र्क होता था, क्या होता था। तो मैंने उनको बोला कि भाई मुझे आई हैव अ नॉलेज ऑफ दिस थिंग, पढ़ लिख के सब पहले लिख लिया, पहले वहाँ भी कैसे करना है, क्या बोलना है। तो उसने मुझसे कहा, कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग, आई हैव 3 क्वेश्चंस तो वो 3 क्वेश्चन मुझे अभी तक याद है। उसने 3 क्वेश्चन क्या क्या पूछे मुझसे। पहला क्वेश्चन कि भाई मतलब ये ट्रांसफ़र पेपर जो हमारा होता था ना, वी यूज्ड टू कॉल इट डेकलकोमानिया पेपर। डेकलकोमानिया इट्स नॉट द सेम लाइक पीपल आर यूजिंग लाइक वाटर स्लाइडर्स टाइप, ऐसा नहीं होता था, ये डिफरेंट होता था। तो ये इसमें ना टिश्यू होता है साथ में, तो ये डिफरेंट पेपर होता है। तो उसको फिर हमने, वो कहता है जी मैं आपसे, ओके लिसन टू मी राजेश या जो भी बोला उसने, यू गिव मी आई मीन माई 3 आंसर्स। आई सेड ओके गो अहेड। कहते फ्रॉम वेयर यू बाय दिस डेकलकोमानिया पेपर। मुझे तो पूरा रटा हुआ था, ऑफमैन एंगलमैन जर्मनी का पूरा एड्रेस तक याद था, मैंने बता दिया। वो बड़ा कन्विंस हो गया। कहते ओके सेकेंड थिंग, अच्छा बोन चाइना के लेबल्स भी बनाते थे, क्रॉकरी के लेबल्स भी हम बनाते थे। अच्छा उस वक्त मैं बताना भूल गया था। तो उसने मुझे बोला कि भाई ऐसे गोल्ड है, तो गोल्ड इस कंपनी का है या दूसरी कंपनी का है, तो इसमें कितनी हीट दोगे आप। अच्छा, वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, मतलब इतना टेक्निकल। 3 कंपनी मुझे बता दी उसने। तो मैंने तीनों का अमित जी ठीक जवाब दिया कि एक का 950, एक का 1200, एक का 1400। और ही वॉज सो कन्विंस्ड। एंड थर्ड वॉज समथिंग लाइक
कि आप हाँ ये बताओ कि 30x40 इसके 9 पीस करने हैं तो क्या साइज बनेगा, आई सी। कुछ इस तरह से पूछा। तो वो साइज बनता है 10x13 13 समथिंग एंड हाफ समथिंग लाइक। ओके। तो कहता है, मुझे उसने पूछा कैन यू आई मीन कट इट ऑन आवर मशीन्स। यस, मेरी अच्छी हेल्थ होती थी, अच्छी होती। 30x40 का 500 शीटें उठानी, आप सोचो एक शीट जो होती थी वो 210 ग्राम की होती है, इतना मोटा पैकेट होता था। सॉरी, करेक्ट, ऑलमोस्ट 6-7 इंचेस। हाँ 6-7 6-7 इंचेस, या। उसको उठा के पहले ऐसे करना, सीधा करना, खड़ा करना, उसको उठा स्टेक के करना होता है, मसल्स स्टेकिंग। चाहिए हाँ, उसके। यस यस। तो कहता वेयर यू फ्रॉम, वेयर यू कॉलिंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फ्लशिंग। कहता है ओके कैन यू कम नाउ। मैंने देखा आसपास कोई, तो सिस्टर गई है दुकान पे। मैं कहा ओके। कहता यू टेक ए ट्रेन नंबर 7 फ्लशिंग से 7 नंबर है तो क्वीन बोरो प्लाजा उतर जा। सो आई वुड बी ओवर देयर, स्टैंडिंग ओवर देयर, और आई विल जस्ट पिक यू अप। मैंने कहा चलो ठीक है यार, देखते हैं। वो गए तो बाकायदा टोपी शोपी डाली, सर्दियों के दिन, अपन भी अपना ठीक ठाक होके गए थे। उसने देखा तो मसल्स काफ़ी स्ट्रांग थे, उठा के मसल्स को पकड़ता है पहले ऐसे करके, क्योंकि वो कागज़ कटवाना था उसने जाकर। So he just took me over to his factory. The factory, in the factory, it was like almost like 30-35 people were working. ओके। गुड, अच्छा बनाया, सेटअप अच्छा था। लेकिन मुझे ये कहे कि यार ये देख, ये जो काट रहे हैं शीटें, जो 30x40 की शीटें काट रहे हैं, मुझे दिन के अंदर ये 10,000 चाहिए या 5,000 चाहिए, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो ये तो पूरा दिन के अंदर 3 आदमी लगे रहते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या काटते हैं, ये तो मतलब 100 शीटें काटते हैं। तो मैं कही कितने कितने रिम काट देते हैं। वो कहते हैं मतलब 10 रिम काट रहे हैं। तो मैं कहा 10 रिम काटने हैं और 1/9 करना है आपने, वही साइज़ जो मैंने बताया 10x13। बेटर नाउ। भाई 30 की तरफ से 3 हो गए और 40 की तरफ से 3 हो गए, 3 या 9 शीटें Correct. एक में निकलनी है। करेक्ट। मुझे अभी तक याद है सारी याद चीज़ों है का, अब तो क्योंकि वो आपने नहीं है किया हुआ है। क्या हुआ। अच्छा। तो आई सेड, मैं कहा 10 रिम्स या पता नहीं ऐसे ही बताया उसने। तो कहते दे टेक ऑलमोस्ट अ फुल डे एंड समटाइम्स दे लीव 2-3 रिम्स, यू नो। आई सेड इफ आई विल डू इट, आई कैन डू इट इन जस्ट 1 आवर, कैन डोंट टेल मी। जस्ट 1 आवर। जस्ट 1 आवर। मैंने कहा, कहता है आई कांट बिलीव इट। मैं क्या कैन आई शो यू नाउ। कहते नो नॉट नाउ। उसको डर लग गया कि कहीं अभी इसने किया नहीं हो पाया तो जो जो मेरे 3-4 बंदे हैं वो बिगड़ जाएंगे, वो भी भाग जाएंगे। तो और बातें होती रही। तो फिर उसने मेरे से गोल्ड शोल्ड के बारे में पूछा, ये सब कुछ पूछा, ठीक है। तो कहते कैन यू कम अर्ली इन द मॉर्निंग 7 o'clock 7:30। मुझे को मुसीबत पड़ गई। मैं कहा मैंने ना तो अपनी अपनी बुआ को, सिस्टर को बताया है, किसी को बताया ही नहीं मैंने कि मैंने तो ऐसे कंपनी के अंदर जा रहा हूँ और मैंने बात कर रहा हूँ, फंस ना जाऊँ कहीं मैं, क्योंकि आई वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग एक्सेप्ट द टूरिस्ट वीज़ा। ओके, यू नीड टू हैव एटलीस्ट सोशल सिक्योरिटी नंबर और समथिंग लाइक दैट, यू नो, टू वर्क समवेयर इन अमेरिका। तो मैंने हाँ भर दी। मैंने कहा ठीक है चलो जी मैं आऊँगा, आई विल कम। कहता आई विल पिक यू अप फ्रॉम देयर। Make you have told me that you will cut it in 1 hour. I said yeah sure. इंटरेस्टिंग। तो मैंने घर आके सिस्टर दुकान पे थी, मैं शाम को पहुंचा कोई 4:30-5 बजे। तो दुकान में बोला, दुकान बिल्कुल घर के नीचे थी, मतलब सड़क अक्रॉस द रोड, साड़ी एम्पोरियम ऑफ न्यूयॉर्क, बड़ा अच्छा चलता था। तो उसके जो हिंदुस्तान लेडीज़ आती थी ना, जो भी हिंदुस्तानी आते थे तो साड़ियाँ लेके आते थे वहाँ से। दे यूज्ड टू इम्पोर्ट साड़ीज़ फ्रॉम जापान। तो जापान से मंगाते थे बड़े बड़े थान। उसके बाद वो काट काट के किसी ने कहा मेरी 5 बना दे, 10 बना दे, ऐसे होता था। शाम को मैं भी लग जाता साथ में काटने के लिए। मैं हर काम कर लेता था। सही। तो मैंने उनको ऐसा सा बताया, दीदी थोड़ा सा काम लगता है मिल गया है यहाँ पे, तो वही तो जिया जी को बता देगा, वो तो उधर बता के आया है दिल्ली के अंदर उसको कॉन्सुलेट को कि इसने वापस आना है, तो घूमने के लिए जा रहा है, या वो है जो भी काम के लिए जा रहा है, जिस तरह भी है, यू कांट वर्क, ये है वो है। मुझे डरा दिया ये पूरा उन्होंने। लेकिन फिर भी मैंने बोला, मैं आप प्लीज़ चुप रहो, अभी अब मत बताना, कल सुबह बोलना किसी कहीं और जाना है मैंने। कहती चल ठीक है। अगले दिन मैं सुबह जी 6:30 बजे घर से निकल गया। एक्चुअली क्या था, मेरे जीजा जी जो थे यूज़ टू गो एट 5 o'clock। अच्छा। वो निकले, मैंने फटाफट दुड़की मारी, नहाया, और मैं वहाँ पे 6-6:15 की ट्रेन पकड़ी, और 7 बजे 7:15 बजे आई जस्ट रीच्ड ओवर देयर प्लेटफॉर्म, उनका प्लेटफॉर्म मतलब क्वीन बोरो प्लाजा। अब वो बंदा खड़ा हुआ है अपनी वाइफ के साथ। अच्छा जी। वाइफ दरवाज़ा खोला, ताला खोला,
तो बेचारा घबराते घबराते मुझे कहता है ये माल पड़ा है, उसको इधर गलत ना काट दे कहीं, कुछ देखो गलत कट गया दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे को तो आदत थी यहाँ पे बैठ के, हिंदुस्तान के अंदर कोई ना, हिंदुस्तान में हम ही खुद ही काटते थे, क्योंकि इनका अगर हम स्टाफ के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं जो स्किल्ड अनस्किल्ड लेवल होती है, तो गलत काट दे, अगर आधा इंच का फर्क पड़ जाता है बहुत फर्क पड़ जाता है उसके अंदर। मैंने पकड़ा, कमीज़ उतारी, सर्दियों को दिन अपना स्वेटर उतारा, और मैंने एक रोल अपना एक पकड़ा, क्या कहते हैं, रिम पकड़ा, उसको ठोका। वो ना शीटें भी ऐसे ऐसे बिखर जाती हैं थोड़ी थोड़ी, जब खोलते हो ना आप उसको, ऊपर पूरा ब्राउन पेपर लगा होता है। खोला, उसको खोल के जब ऐसे ऐसे किया, वो देख रहा है, वो घबरा रहा है कि भई कहीं गलत ना काट दे। तो पहले तो मैंने सेट किया वैसे ही, 3 पहले काटे, 10 3 कट गए, हार्डली 1.5 2 3 मिनट लगे होंगे मैक्सिमम। फिर मैंने कहा शैल आई कट होल द लॉट और शैल आई कट जस्ट वन, कहते ना कट वन फर्स्ट, एक रिम काट के बताओ पहले। मैंने फटाफट उठाया, उसके 9 पीस कर दिए, वो नापे, फुट्टे से नाप के, उसकी बीवी भी और वो भी नाप के देखें कि बराबर है यार, ये तो पूरा बिल्कुल ठीक है। 13 1/3 होता था, 13 इंचेस 1/3। वो नापे ऐसे करके ठीक है। वो मुझे देखे, उसकी अपनी बीवी को देखे, क्या करे जी वो तो बिल्कुल चीज़ सामने पड़ी है। और हार्डली 5 मिनट नहीं लगे होंगे, 5 या 6 मिनट लगे होंगे मैक्सिमम, क्योंकि मशीन का मुझे थोड़ा समझना था, क्योंकि मशीन वो थी हमारे यहाँ तो हाथ से चलती थी, हम तो हाथ से चलाते थे। उनका वो क्या होता था कि ऑन पावर से चलती थी। उनका तो वो भी था कि अगर हाथ अगर अंदर कर दोगे तो हाथ मशीन रुक जाएगी। वो मशीन, पेपर गिलोटिन, हाँ प्रॉपर पेपर कटिंग मशीन। पेपर कटिंग मशीन उस ज़माने की बात कर रहा हूँ यार, 72 में हिंदुस्तान में कम थी, हमारे पास नहीं थी। एटलीस्ट होगी हिंदुस्तान में, ये नहीं मैं कहता कहीं के पास नहीं होगी, भाई बड़ों के पास हो सकती, लेकिन मेरे पास तो हाथ से मैं चलाता था उसको, पूरी मसल के, तभी तो मसल बने थे, हाथ चलाए गोला घुमाने पे, तभी तो मशीन वो जो पहले शैंडलियर टाइप, शैंडर टाइप जैसे सिलेंडर जैसे चलते हैं उसका। मैंने उसके 10 रेम काट दिए, और मेरे ख्याल वही 55 60 मिनट लगे। 8:30 बज गए, फैक्ट्री खुल गई, माल की तो ढेरी लग गई वहाँ पे। और मुझे उसने कहा फटाफट अंदर आ जा, तो ऑफिस में आ जा। मैं ऑफिस में चला गया। उसने बोले अच्छा यार, तूने ये भी, तेरे को पता है, ये भी पता है, अच्छा तू क्या क्या लेगा, तनख्वाह क्या लेगा? मुझे ए का नाम बी नहीं पता, वहाँ पे तनख्वाह क्या क्या भी, मैं तो ऐसे ही फूकों की तरह चला गया वहाँ पे, टूरिस्ट वीज़े पे गया बंदा, मुझे क्या पता क्या तनख्वाह वेजेस क्या होती क्या नहीं होती, नाले मेरे पास कुछ ना ही कुछ, मेरे पास कोई पेपर ऐसा कि जिसमें काम कर सके, कोई वर्क परमिट भी नहीं है। तो मैंने कहा यार लेट मी, आई हैव टू जस्ट टॉक टू विद माई सिस्टर और ब्रदर इन लॉ, बिकॉज आई डोंट हैव एनी, कहना यू हैव दैट विजिटर वीज़ा? मैं कहा यस आई दैट आई गॉट। तो कहता है नहीं हम कर लेते हैं कुछ, तो यू ऐसे करो आप, यू जस्ट गिव योर सिस्टर्स नेम। मैं कहा ब्रदर लॉ इज वर्किंग इन कोडक, तो सिस्टर का नाम दे दो आप। तो सिस्टर का नाम हमने, बहुत आए घर में आए, कुछ थोड़ी बातचीत हुई, तो इन नटशेल मतलब वहाँ मैंने कम से कम नहीं तो 4 या 5 महीने काम किया। आई स्टार्टेड विद अमित जी $3 सवा $3 घंटा, और मैं $8 घंटे पे आ गया था 6 महीने के अंदर अंदर। और जिस स्पीड से मैं जा रहा था, माई ब्रदर लॉ यूज टू ही वॉज टेकिंग ऑलमोस्ट $13 14 पर आवर, मैं $8 पे आ गया था, ये सोच लो आप। और मेरे जो साथ में वहाँ डिज़ाइनर था, उसने मुझे कहा शिकागो के अंदर एक और कंपनी है जिसको बंदों की ज़रूरत है, और तेरे जैसे बंदे को वो $12 दे देगा। अच्छा और जब मैंने घर में बात बताई मेरे अपने सिस्टर को, तो मेरे जीजा जी को लगा ये तो भैया, ये ज़माना वो था ना कि अमेरिका से जो कोई आता था ना बंदा, तो कुत्ता भी आ जाता ना वहाँ से, तो लोग एयरपोर्ट में हाथ डालने चले जाते थे। ये 76 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ब्रदर इन लॉ को लगा भैया ये तो हो गया, तो मेरी तो वैल्यू कम हो जाएगी हिंदुस्तान में, आए तो जाता हूँ तो बेजा बेजा हो जाती है। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इधर से मेरी दादी जो थी वो हो गई थोड़ी अग्रेसिव हो गई कि भाई इसने तो मेरे बेटी के घर में जाके प्रॉब्लम कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो मेरे फादर मदर ने कोई ड्रामा किया थोड़ा सा कि बीमार हैं पापा, ये है वो है, तो जल्दी आ जा फटाफट। तो मैंने फिर इनको बोला, जो अपने जहाँ में काम करता था, कि मुझे जाना है और ऐसे ऐसे मैं आ जाऊँगा, 15-20 दिन के अंदर आ जाऊँगा। उन्होंने कहा तुम कुछ लेके जाना, जा, सारे तेरे पेपर्स आते बाद सब तैयार रहेंगे, बिल्कुल आने हैं, बस साइन करने हैं, एंड यू विल बी गेटिंग दैट मिग्रेशन यू बी। अच्छा। तो मैं वहाँ जब एयरपोर्ट चला, तो फादर मदर लेने आए हुए मुझे वहाँ पे। मैं कहा आप तो बीमार थे, कह दूँ घर चल पहले, घर गया तो फिर वो सारी कहानी वही कि तुमने नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, घर का प्रॉब्लम है। तो ये स्टोरी तो एक मेरी वहाँ तक की है जो मैं अमेरिका से आया।
वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद मुझे ज़िंदगी में बस यही था, कुछ बनना है। अब एक्सपीरियंस भी हो गया, अब फॉरेन रिटर्न आदमी होता है तो तो बंदा ज़्यादा जोश आ जाता वैसे ही है, जोश हो जाता है कि जोश यार आ कुछ तो जाता करे, नहीं तो बंदे कहेंगे यार कहाँ से आ गया यार ये। है। और उसके बाद फिर मैंने 77 के अंदर वो फैक्ट्री जो थी मैंने बनाई थी, जो एल शेप, उसको मैंने उसका इनाग्रेशन की। तो मशीनें, 2-3 मशीनें थी, एक दो मशीनें और डाली, लेबर बढ़ाई। उसके बाद फिर हमने काम, फिर क्या हो गया इस दौरान के अंदर, 81 में तो वीपी सिंह आ गया था। अच्छा जी। वीपी सिंह 81 में या 80 में आया था। ओके। तो ये जो लाइसेंस था ना वो ख़त्म हो गए। अच्छा, उसमें ये था कि एज मच यू वांट यू कैन, आई मीन, मीन्स ओजीएल हो गया, ओपन ब्रिंग। जनरल लाइसेंस। ओपन जनरल लाइसेंस हुआ था लेकिन वो भी इतना नहीं हुआ था, कुछ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन थी उसमें। ओके। लेकिन उसमें ये था कि हमको, हाँ नहीं नहीं नहीं, वो जब आया तो एक्सपोर्टर्स को उसके अगेंस्ट, जो एक्सपोर्ट करते थे उसके अगेंस्ट उनको लाइसेंस मिलते थे, आपको याद होगा। यस यस, ड्रॉबैक्स जो बोलते थे, ड्रॉबैक्स में, ड्रॉबैक्स में। करेक्ट। तो उसके अगेंस्ट वो कुछ भी मंगा सकते थे करेक्ट, बाय पेइंग सम सर्टेन ड्यूटी, यस यस मे बी यस, 100% और या जो भी था। करेक्ट करेक्ट। तो वो फिर हमें एक्सपोर्टर मिल गए, एक दो ऐसे। फिर साहब हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं। फिर मैं, मतलब अपनी इंडस्ट्री में तो आग लगा दी मैंने। मतलब ये था कि मुझे फुर्सत नहीं थी, 24 घंटे फैक्ट्री चलाता था। ट्रांसफ़र लेबल्स मेरे एक्सपोर्ट भी होते थे, स्विंग मशीन, ऑल 9 रेलवेज़। हालांकि उसका 3-4 बंदे और भी आ गए, गुड वर्क कंपनी भी आ गया, साइनोग्राफ कंपनी आ गया, बंगाल मेटाग्राफ आ गया। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास इतना काम था कि वो जो काम, फिर क्या हुआ कि जो सारे जो रेलवे के काम थे ना वो सारे उधर चले गए, योर कैलकाटा साइनोग्राफ एंड उधर बंगाल बंगाल मेटाग्राफ। मेटाग्राफ। वो क्या हुआ कि उन्होंने पेपर अपना बना लिया। बंगाली लायक बहुत होते हैं, वो जो ड्यूटी इतनी ज़्यादा थी, उन्होंने पेपर अपना बनाना शुरू कर दिया वहाँ पे। अच्छा जी। और जब पेपर हमें दे ना, हम उनको बोलें कि हमें बेच दो, वो ना दें। उससे क्या होगा कि रेलवे के अंदर जो काम था वो हमारा काफ़ी हद तक कम हो गया। अच्छा। फिर हमें कोई डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाना पड़ा। पर एक स्टेज ऐसी आ गई 79 में, आई गॉट मैरिड, शादी होगी 79 में। और अब उस वक्त हम एक या दो पार्टीज़ का ही काम करते, तो इतना काम था अमित जी कि 2 पार्टीज़ का काम, और बेस्ट पार्टीज इन द इंडिया। ओके। इतना काम था कि हमें कोई, जैसे समझ लो बंगाल पोर्ट्रीज है या इतकारी है, इतना काम था कि हम फिक्र नहीं था, दिन रात लगे रहते थे। उनके बंदे हमारी मतलब फैक्ट्री के अंदर आए रहते थे कि माल के लिए माल दो, माल दो, माल। और हमारे पास माल जैसे तैयार होता था, बंदे तैयार होते थे लेने के लिए। तो वो फिर जब मटेरियल काफ़ी हमने ऐसे किया, तो मतलब वी वर डिपेंडेड अपॉन ऑलमोस्ट लाइक 1 or 2 पार्टीज। अच्छा। So like you फिर you शादी have हुई। led that particular life like a monopoly business. मोनोपोली बिजनेस, यस, अप टू सर्टन पीरियड, अप टू सर्टन पीरियड। So your supplies were not there in the eastern zone. सब जगह था। You were there in eastern zone. Although the other मैंने two बोला, people मैंने were there also हमने in आग eastern. लगा दी थी यार, बहुत पैसा भी बहुत कमाया हमने। हम 1 रुपए की चीज़ 5 रुपए की बेचते थे, 10 रुपए की बेच देते थे। I heard you also entered into bicycle industry. यस, वहाँ पर भी बहुत भी हमने कमाल कर दिया था, बहुत कमाल किया था। बाइसिकल के लेबल्स बनाते थे। अब तो सारी बाइसिकल्स तकरीबन चाइना से आती हैं। हिंदुस्तान की तो सारी एटलस बंद हो चुकी है, कई हीरो भी ऑलमोस्ट yeah बंद हो गई, टीआई ऑलमोस्ट बंद हुई पड़ी है। तो एट वन स्टेज ऑफ टाइम वी यूज्ड टू सप्लाई, मतलब टू एनी अमाउंट ऑफ दिस थिंग। हमारे पास काम इतना होता था, इतना काम होता था कि फुर्सत नहीं होती थी। So then how did you transfer from let's say from transfer labels to other product labels? अब इसके बीच में बहुत कुछ है। अच्छा जी, बताइए। अच्छा, तो वो फिर क्या हुआ कि आफ्टर माई मैरिज 79, 80 में आदित्य हो गया। Yeah. 80 के अंदर आदित्य हुआ नवंबर में। 81 में अम्मी जी हम ना सिर्फ 1 या 2 कंपनी का काम कर रहे थे। इतना काम था कि फुर्सत नहीं थी, और इतनी अच्छी कंपनी थी कि एडवांस पेमेंट देती थी। हमने कहा बाकी छोड़ो, सब और भी प्लेयर्स काफ़ी आ गए थे।
अब जैसे कहते हैं मुझे स्ट्रांग किसने बनाया, एक क्वेश्चन आता है अगर आपका उसमें हो कि हाउ आई बिकेम स्ट्रांग, और कहते हैं ना इन माय बिजनेस कि मैं डिसीजन लेने में अच्छा हो गया, कुछ हो गया। तो ये बात है 80 की, 80 या 81 की। तो मैंने वो जो कंपनी थी उसके अंदर जो पुराने जो उनके बड़े बुजुर्ग थे, अब वो बड़े बुजुर्ग हो गए, अब मेरे जैसे बंदे उसके अंदर एंटर कर गए। अब जो बंदे मेरे वाले मेरे जैसे आए वो पढ़े लिखे, बड़े अच्छे स्ट्रांग, कोई फॉरेन से पढ़ के आ रहा है, कोई उधर से पढ़ के आ रहा है। उन्होंने देखा जी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम किस किस में है, उनको सबसे पहले लाइन आ गई ट्रांसफर लेवल्स में, क्योंकि हमें चाहिए दिन का 20,000 सेट, और ये हमको पीसी चड्डा एंड कंपनी हमको देती है 10,000, 11,000, 12,000। 20,000 भी दे देती है, ये नहीं देती नहीं है, पर हमें वहाँ खड़े रहना पड़ता है। अब उनको हो गया जी कि भाई उनके लिए चैलेंज था, फिर जो नए लड़के आए उनके लिए चैलेंज था। दे वेंट स्ट्रेट अवे टू कैलकाटा, अच्छा, योर जहाँ पे कॉम्पिटिटर। वो इंडियन मटेरियल मिलता था, हम इम्पोर्टेड पे करते थे। जब वो हमारी फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा था तो वी गॉट अ लेटर कि नाउ ऑनवर्ड्स प्लीज़ होल्ड ऑल आवर सप्लाईज टिल आवर फर्दर नोटिस। वो लेटर आई, हमने पहले तो एक दिन पड़ी रही वैसे ही, वो दूसरे दिन कहीं वो एक्चुअली घर के अंदर भी ना इतने बड़े घर नहीं होते थे, घर थे उसकी अलमारी के अंदर पड़ी रही। दूसरे तीसरे दिन कहीं मैंने या किसी ने उठाई लेटर, देखा तो मैं कहा ये क्या है, और वो देखा कि 2 दिन से कोई बंदा भी नहीं आ रहा उस कंपनी का। तो मैंने पढ़ा तो शॉक्ड, मैं कहा ये क्या हुआ। मैंने फादर से बात की, फादर कहते हैं अच्छा यार चलो चलते हैं। वहाँ गए तो वहाँ का परचेज मैनेजर था, कहते हैं आई एम हेल्पलेस, क्योंकि नाउ फलाना फलाना जो है उनका लड़का आ गया है, 2 लड़के उनके 3 लड़के आ गए, और वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, ये है वो है, स्ट्रॉन्ग हेडेड ऑल्सो। वो कहते हैं चड्डा को बंद करो। और उन्होंने क्या किया, हमारे जाके रेट जो थे ना, अब सोचो कि हम इम्पोर्टेड पेपर पे वो रेट देते थे, सपोज 2 रुपये देते हैं, उन्होंने वही जाके बोला उस कंपनी को कि भाई ये रेट है हमारे, आप हमें माल दोगे। अब जो उनको पड़ता हो 8 आने का 50 पैसे का, और वो 2 रुपये का रेट उनको मिले, वो क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो तो लग गए वहाँ पे दनादन दनादन। तो भाई साहब हमारे घर में ना, मैंने अपनी वाइफ को इतना बोल दिया कि तू अपने मायके चली जा, अगर मेरा हालत थोड़ी सी यहाँ पे सुध खराब है, फैक्ट्री में लड़के कोई बैठे हुए हैं, माल पड़ा हुआ है, वी आर नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग। तो फादर मेरे बड़े उदास हो गए, कहते हैं यार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं कोई बात नहीं, देखी जाएगी, फिक्र मत करो। देन आई स्टार्टेड गोइंग टू द अदर कंपनीज। तो फिर जब मैं अदर कंपनीज में गया, उनको पता चला ये उस कंपनी में माल देते हैं, और थोड़ा सा स्मार्टनेस भी थी, और फिर हमने उनसे एक आध कंपनी का काम मैं दूसरे तीसरे दिन ही ले आया। मेरी फैक्ट्री 3 दिन के अंदर चल गई। उससे जो मुझे कॉन्फिडेंस आया, जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो बहुत बढ़ गया, मेरी फैमिली का कॉन्फिडेंस मेरे पे बहुत बढ़ गया कि राजेश इज़ द ओनली पर्सन हु कैन डील विद द थिंग्स। और मैं फिर क्या था, मैं मतलब काम में कम बाहर ज़्यादा। अच्छा। अब आगे थोड़ा मज़ा आएगा। जब कोई 15 दिन गुजरे तो साहब वो जो चिट्ठी आई थी ना होल्डन वाली, वो चिट्ठी दोबारा आ गई, इमीडिएटली स्टार्ट सप्लाइंग दीज आइटम्स। क्या बात है। इतने में देखा जी बंदे आ गए उधर से, जिनके परचेजर्स थे ना, जो परचेजर्स फील्ड के लिए भी अलग होते हैं, परचेज मैनेजर जीएम अलग होता है, एक परचेजर होते हैं जो फील्ड के लिए होते हैं ना, जो बंदे जाके माल ले आते हैं, वो सारे बंदे 4-4 बंदे दिन में आने शुरू हो गए। मैंने कहा क्या हुआ, कहते जी आपको पता ही नहीं क्या, कहते जो माल लिया था सारा रिजेक्ट हो गया। अब आप आओगे कैसे, हमारे दादाजी की वो जो फोरसाइटनेस थी, पुणे के अंदर माल नहीं बना कि ह्यूमिडिटी थी, कलकत्ता में ह्यूमिडिटी थी, बड़े बड़े लेबल्स तो बन जाते थे, फाइन लेबल्स नहीं बन सकते थे उसके अंदर, रजिस्ट्रेशन आउट हो जाती थी। और जितने हम लेबल्स बनाते थे, चाहे बोना चाइन वगैरह, बड़े फाइन लेबल्स होते हैं, आपने देखा क्रॉकरी के बड़े फाइन होते हैं, एक एक लाइन होती है। यस यस यस। तो साहब वो बंदों ने कहा जी हमें तो माल चाहिए। हमने कहा हमारे पास तो माल है ही नहीं। कहते हैं हमें किसी भी कीमत में माल चाहिए। अच्छा, उनका प्रॉफिट भी उसका 300% था। अब मैं कोई चीज़ देता था 28 रुपये का देता था सेट,
तो मैंने कहा जी अब तुम, अगर मैं लूँगा बाज़ार से भी कागज़ लेता हूँ कुछ करता हूँ तो मुझे तो कम से कम भी आपको मैं 60 रुपये से कम नहीं दे सकता। हालत अंदर से हमारी बिगड़ी हुई थी, माल पड़ा हुआ था कितना दूसरे को कितना दे देंगे हम, अभी कई बात स्टार्ट ही तो किया है। सही बात है। वो कहते हैं आप आओ। अब मैं और मेरे फादर हम गए, वी वेंट ओवर देयर। उन्होंने कहा जी मालिक से बात करो। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे है, अब देखिए आपने इतना बड़ा हमें वो दे दिया। उसने अपने बेटे को बुलाया जो गया था वहाँ पे, जो यंग था। तो तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें ये नहीं पता वो नहीं पता, आज इतने साल हो गए हम बेवकूफ़ हैं यहाँ बैठे हुए हैं, हम इनसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। वो बेचारा वो मुझे लटका के वो निकल गया। वो कहते अब बताओ जी क्या बताओ। अब कहते अब हम लिख के दे रहे हैं आपको कि हम और किसी के पास नहीं जाएंगे, हमारा कमिटमेंट हो गया आपके साथ। मैं कहा लिखो जी फिर आप। फिर हमने वो चीज़ जो हम 28 रुपये की देते थे, मुझे अब तक याद है, वो हमने 48 रुपये की दी। क्या बात 48 रुपये की दी। है। और ये बात है 92-3 तक, ओहो। नहीं 92-3 नहीं मैं कहूँगा, 86-87 तक हम फिर स्टिकर्स ले आए उस दौरान में। सोचने की बात है चड्ढा साहब कि आज की तारीख में जो सुनने वाले जो लोग हैं वो यही सोचेंगे कि प्राइस तो कम करने वाली बातें होती है कंपनी में जब जाते हैं। तो आपने जो वो कर बैठे कि कंपनी में जा करके डबल दी प्राइस लेके आ गए, दैट इज समथिंग। ये राजेश शेट्टा का दिमाग बड़ा था उस वक्त, बहुत चलता था। मैंने बताया ना, अमेरिका में जो आदमी टूरिस्ट गया, वो जहाँ के वहाँ एक कंपनी में जाके काम करना शुरू कर दिया उसने। और उस ज़माने में 76 में $8 घंटा, आप गूगल में डालकर देखो कि क्या $8 कन्वर्जन घंटा के लेना हिसाब उसका से। क्या कितना मतलब ज़बरदस्त होता था। माइक अपना जिसने आपने कहा। इंजीनियरिंग की हुई, हाँ। मैं तो सिंपल बीए करके गया था वहाँ पे। मेरे ब्रदर ने इंजीनियरिंग की हुई फ्रॉम वेरी गुड कॉलेज हियर इन इंडिया, एंड ही वाज विद वर्किंग विद कोडक एज इंजीनियर, एंड ही वाज ड्राइंग लाइक 13-14 पर आवर, एंड ही वाज वेरी वेरी हैप्पी। और $14 घंटा तो बड़ा है यार। यहाँ तो उस ज़माने में खाने का ग्रॉसरी कितने की आती थी अमेरिका के अंदर, बहुत कम रेट। आप सारा जाओ ग्रॉसरी पूरे हफ्ते का आपको $20-25 में सारा सामान हो जाता था उस ज़माने के अंदर। तो मैं उस ज़माने की बात करूँ कि दिमाग काफ़ी तेज़ चलता था। तो बस फिर हमने देखा नहीं मुड़ के। 86-87 में मैं ना स्टिकर्स, प्रेशर सेंसिटिव स्टिकर्स ले आया, करेक्ट। वो भी बाइसिकल इंडस्ट्री के लिए। उन्होंने देखा यार ये चीज़ तो बड़ी अच्छी बहुत है, लेकिन महंगी बड़ी है, क्योंकि वो ट्रांसफ़र सस्ता था उसके हिसाब से, स्टिकर महंगा था। स्टिकर महंगा क्यों था जी? वो सारा मटेरियल बाहर से आना था, छपना यहाँ पे था, और छपने में हमको बड़ी दिक्कत होती थी। मैं फिर वहाँ गया, ट्रेनिंग की थोड़ी सी, अपना क्या कहते हैं अमेरिका में दोबारा की, जाता रहता था। मतलब मेरा फिर ये हो गया उसके अमेरिका 81 के बाद आई हैव विजिटेड अमेरिका अप टिल नाउ मोर देन आई थिंक 30-40 टाइम्स। तो ये एक ऐसा सिलसिला था कि जब मैं अपने प्रेशर सेंसिटिव लेबल्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, और आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने एक्सेप्ट किए, और आहिस्ता आहिस्ता वो वैनिश भी होते चले गए टाइम से। इंडस्ट्री, साइकिल की इंडस्ट्री जो थी वो ख़त्म होती चली गई। ट्रांसफर्स जो थे वो थोड़े थोड़े रहे, जैसे वो चाइना के अंदर, लेकिन हितकारी थी हमारा काफ़ी अच्छा, हम उसके अपना सप्लायर थे। बंगाल पॉटरीज के कब बड़े अच्छे सप्लायर्स थे। अब आपने पता होगा दोनों बंद हो चुकी हैं, कोई दे स्टैंड नो वे नाउ। तो चड्ढा साहब, माइंड ब्लोइंग स्टोरीज ऑल अराउंड। अच्छे अच्छे एपिसोड, ऐसे ऐसे एपिसोड्स आपने सुनाए हैं जो आई एम श्योर इट इज़ वेरी एनकरेजिंग, वेरी वेरी एनकरेजिंग थैंक यू वेरी मच। for the viewers who are seeing this particular episode of ours. Now I want to understand when the first love towards self-adhesive labels developed. You were into transfers and quite a long period of transfer labels. Of course, and then you went into stickers, which we call today as pressure-sensitive self-adhesive labels. How did that started? एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये देखा कि अब ट्रांसफर्स की लाइन जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, so I have to come with some innovation kind of thing, you know. So when I started going to countries, you know, I just see over there the lot of multicolor bicycles, multicolor things, you know, and I just used to touch it from my finger. To have the What are these? तो वो देखा, मैंने पता किया, तो कहते हैं इसको प्रेशर सेंसिटिव स्टिकर्स कहते हैं। यहाँ पे अभी कोई नहीं कहता, अब तो शायद कहता भी होगा तो सानी जैसे लोग ही कह सकते हैं। आई थिंक कोई पीएस लेवल कोई बोलता ही नहीं पीएस लेबल्स कोई नहीं नहीं बोलता, बोलता है। तो दे जस्ट कॉल इट प्रेशर सेंसिटिव लेबल्स। तो मैंने जब देखा कि मैं गया बाइसिकल्स में ये लेबल्स तो बड़े अच्छे चल सकते हैं, अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है इसमें तो। मल्टी कलर एंड ग्राफिक्स एंड एक्चुअली क्या होता था अमित जी कि जब हम ट्रांसफर्स देते थे उनको, व्हाट दे डू इट,
दे जस्ट फिक्स इट ओवर देयर विद इट्स अ लॉट ऑफ आई मीन टीडियस काइंड ऑफ बड़ा मेसी सा प्रोसेस होता था। उसको मिट्टी का तेल का इस्तेमाल भी, केरोसिन ऑयल भी इस्तेमाल होता था, वार्निश भी इस्तेमाल होता था, उसके बाद लेकर भी होता था, उसके बाद ओपनिंग होती थी। ओहो। ट्रांसफर्स जो जितने भी आप स्विंग मशीन में देखते थे, बोन चाइना में देखते थे, बोन चाइना में आप देखते थे ना जिसमें लगते हैं ट्रांसफर्स लगते हैं थे, तो उसके बाद उसको रात को पूरा भट्टी में डाल देते थे 900 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। करेक्ट। सुबह वो 3 बजे 4 बजे तक, अगले अगले दिन दोपहर को 3 4 बजे तक ठंडी होती थी वो, तब उसमें से चमक आती थी, तब वो आप उसमें बाहर निकलते थे। तो थोड़ा मैसी सा काम था, तो मैंने कहा इसमें कोई चेंज लाया जाए। तो देन आई वेंट टू सम कंपनीज ओवर देयर। उसका भी एक छोटा सा सिलसिला है, ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा मैं। तो मैंने देखा यार यहाँ पे जो लेबल्स लग रहे हैं साइकिल्स में ना, बड़े सिल्वर, बड़े गोल्डन लग रहे हैं, और हमें स्टिकर्स के अंदर में कैसे गोल्डन सिल्वर लगाएंगे, समझ नहीं आती थी। गोल्ड कलर होगा, ये सिल्वर कैसे लगाएंगे। तो मुझे एक वहाँ पे मुझे एक गुरु मिल गया, मेरा गुरु टाइप ही समझ लो। उसने मुझे सारा ना बता दिया कि ऐसे कर, तू किसी पर्टिकुलर एक फॉयल कंपनी है उसके पास चला जा, उनके पास एक स्पेशल ग्रेड है जो आपको ये अपना स्टिकर्स के लिए, प्रेशर सेंसर्स के लिए दे देंगे, आप उसको लगाना, लेकिन वो भी तरीका बताया उसने कैसे लगाना है। तो मैंने कहा अच्छा। मैं चला गया जी क्राउन फॉयल्स न्यू जर्सी। अच्छा जी। क्राउन फॉयल्स न्यू जर्सी में गया, तो मैंने उनको ऐसे बोला, मैं आई एम अ प्रिंटर एंड आई जस्ट वांट द लेबल्स फॉर ट्रांसफर्स, आई जस्ट वांट द लेबल्स फॉर द PS level. PS labels, and I want to print this silver or holographic type of things, you know, रिफ्लेक्टिव टाइप। reflective type जो है, with the shining ones। जैसे जी हो जाएगा। तो मैंने कहा इसका क्या है, रेट रूट क्या है, कैसे है। चलो रेट की बात हो गई, मुझे लगा यार रेट कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी ले सकता हूँ वहाँ जाके। तो मैंने उनसे जाके 5 7 10 रोल खरीदे बाई पेइंग कैश। दिल्ली आ गया। दिल्ली आके मैंने, एक बंदा था बड़ा सरदार जी थे, उनसे एक मशीन बनवाई हैंडी, बड़ा मतलब मैनुअल सी मशीन बनवाई, ऐसे करके हाथ से दबाने वाली। मैं उसमें क्या करता था कि लेबल सारे, स्क्रीन प्रिंटिंग का भी उसका, मुझे स्क्रीन प्रिंटिंग का सारा आ गया था वो। आई लर्न समवेयर, वो अमेरिका में वो भी सीखी मैंने। वो मतलब बीच में एक एपिसोड था, वो चलो ख़त्म हो गया, स्क्रीन प्रिंटिंग सीख ली थी। तो हमारे पास ट्रांसफर्स तो चल ही रहे थे साथ में, साथ में हमने स्क्रीन प्रिंटिंग का शुरू कर दिया था। तो स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर बस वो एक जो अपना ब्रांड होता है, उसको सिल्वर या गोल्डन में करने के लिए मैंने उस सरदार जी से कह के मशीन बनवा ली है, हाथ की मैनुअल। तो जब वो प्रिंट करके आते थे, तो जब छापते थे हमारे लड़के, तो उसको नीचे फॉयल रखते थे, छापते थे जैसे आप फॉयल छापते हो, वो छापते थे, उस पर करते थे। लेकिन स्पेशल ग्रेड था, वो प्लास्टिक के ऊपर छपते थे। अच्छा जी। जलते नहीं थे। लेकिन साले वो ऐसे, मतलब वो बंदे थे अनस्किल्ड टाइप, आधा माल खराब आधा ठीक, लेकिन चल गया किसी भी तरह। तो हमने उनसे वो भी ले लिया, डेविएशन भी ले लिया कि भाई 5 7% जो है इधर उधर हो जाएगा, तो आप ले लेना। अच्छा, दे वर क्वाइट हैप्पी। उनका जो प्रोडक्शन था, वो समझ लो कि जो था वो तो चल ही रहा था, उसका तो उनका भी मतलब स्केल बहुत तगड़ा हो गया था। लेकिन जो चीज़ उनकी एक 500 रुपये की बिकती थी, बाई पुटिंग दैट लेबल दे कुड सेल इट फॉर 550 रुपीज़, बाई इन्वेस्टिंग मेयर हार्डली 5 8 रुपीज़ मोर। ओहो। तो अच्छा। वो भी उनका हिसाब फिर वही, वो पीछे पीछे पड़ गया, हम जितना माल है लाओ, जितना माल है लाओ। फिर 94 के अंदर मैंने कहा यार अब तो ये स्क्रीन प्रिंटिंग पे मेरा काम नहीं चल रहा। स्क्रीन प्रिंटिंग मैंने कम से कम, ये 96 की बात होगी या 7 की होगी, मैं ये मेरा काम इस पे नहीं चल रहा, अब तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। ट्रांसफर्स भी ख़त्म हो रहे हैं। फिर मैं, देयर वॉज कंपनी समवेयर इन दिल्ली, सरदार जी थे, मुझे नाम आपको शायद याद होगा उनका, सुरिंदर सिंह जी। सुरिंदर सिंह जी। तो मुझे किसी ने बताया साहब ये अपना अमृतसर प्रिंटिंग प्रेस। अमृतसर प्रिंटिंग प्रेस, ये किसी का डीलर है, तो ये मशीनें मंगवाता है। तो मैं उसके पास गया, तो उसके पास बड़ी छोटी सी मशीन थी उसकी, फ्लेक्सो की, 2 कलर की या 3 कलर की। तो मैंने उससे बोला भी कितने की है, तो उसने मुझे बताया कि जैसे सपोज़, मुझे नहीं पता, जैसे 2 लाख रुपए की है। मैं क्या, अगर मैं 5 कलर की ले लूँ, कहता है वो माशा 5 लाख की हो जाएगी। मैं क्या, अगर मैं 8 कलर की ले लूँ तो कहते हैं 8 लाख की हो जाएगी। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा। तो एक कंपनी थी इन UK बाय द नेम ऑफ, फॉयल। नहीं नॉट न्यू फॉयल, फोकस, फोकस। एंड ही वॉज द डीलर ऑफ फोकस। तो मैंने उससे 6 कलर की एक सिलेंडर प्रेस मंगाई, CI प्रेस। CI प्रेस, सिलेंडर प्रेस, वो मंगाई।
फोकस वालों की। तो वो गए, चटा जी आपने मंगा तो लिए, चलनी तो है नहीं आपसे, तो मेरे से 2 कलर नहीं चलते, आपके कहाँ से चल जाएंगे, यह हुआ है। लेकिन हमारे पास जो बंदे थे वो काफ़ी तेज़ थे, बंगाली थे 2-3 तगड़े, हमने चलानी शुरू कर दी। हमने लेबल्स बनाने शुरू कर दिए उस पर। अब सिल्वर तो नहीं छपता था उस पर, लेकिन गोल्ड तो छप जाता था। अब वो सारे क्या हो गया कि जितने ट्रांसफर्स थे ऐसा ऐसा सारे प्रेशर सेंसिटिव स्टिकर पे आ गए। ओके। ईजी टू हो गया। जो रेट हम पहले ज़्यादा लेते थे, अब वो रेट हमने काफ़ी कम कर दिया। अब उससे कम होने से क्या फ़र्क पड़ गया कि उनको भी कुशनिंग हो गई, ऑक्सीजन मिल गई कि भाई जैसे अगर ट्रांसफ़र पे वो देते थे हमें 5 रुपये, तो स्टिकर पे हमें दे रहे हैं वो 9 रुपये, बट एट द वेरी सेम टोकन दे आर सेविंग क्वाइट अ बिट। करेक्ट। केरोसिन ऑयल, उसके ऊपर वार्निश, मैसिंग, ये स्ट्रेट लगाए छुट्टी, लगाए छुट्टी, जितना माल है शाम तक बाहर। दे वेरी हैप्पी। तो भाई साहब मुझे उस तरह 3-4-5 कंपनी अच्छी मिल गई। ओह वाओ। इतनी अच्छी मिल गई कि मुझे फिर फुर्सत नहीं थी सर, कोई फुर्सत नहीं। मैं घर पहले बाद में पहुंचूं, फिर अमेरिका जाने का चक्कर हो जाता था। अब उसकी बात, छोटी सी और बात बता दूं, क्राउन फाइल्स के साथ क्या हुआ। हिंदुस्तान में सिर्फ सिल्वर और गोल्डन चलता था, ये क्रूज वाले बनाते थे, वो भी बनाते नहीं थे, इम्पोर्ट करते थे। मैंने उनसे, क्राउन वालों से देखा तो वो बड़े ज़बरदस्त अपने प्रिंट्स बनाते थे, क्या सिल्वर के अंदर होलोग्राफिक, ये वो सब कुछ। मैं 5-7 रोल वो ले आया, लेकिन दैट वाज नॉट मेंट फॉर द स्टिकर्स, दैट वाज मेंट फॉर द पेपर। ओके। तो मैंने सदर बाज़ार के अंदर किसी को दिखाया, मैंने कहा यार ये देख ऐसा है। वो देख के पागल, वो देखे ये कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा। और मैंने ऐसे, मैं अच्छा बताता हूँ। तो वही साहब जैसे मैंने बताया ना, कोई चीज़ 10 रुपये की थी तो मैंने 30 रुपये की बोल दी। वो बंदा कहता है जी मुझे इतने रोल चाहिए। अच्छा जी। मैंने कहा एडवांस दे। एडवांस दिया। आई स्ट्रेट वेंट टू बैक टू अमेरिका, न्यू जर्सी गया। मैंने कहा जी इतने रोल पैक कर दो। उसने, जैसे मुझे, मेरे पास ऑर्डर है 500 रोल का, तो मैंने कहा तो 1000 कर दे। मैंने बॉम्बे में आपके वहाँ पे, मुझे नाम नहीं याद उसका, तालपाड़े था, क्या नाम था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, खंडेल कर कुछ ऐसा नाम, वो मिल गया मुझे यहाँ पे, उधर ही बाज़ार के अंदर ही। ओके। तो उसने मेरे से लेने शुरू कर दिए माल। भाई साहब वही चीज़ थी, मैंने जो 30 रुपये की चीज़ थी वो 60 रुपये की शुरू कर दी। जो प्रिंट नया लेके आऊँ वो पागल हो जाए। अल्टीमेटली क्या हुआ कि मैं एक दिन उनके वहाँ ग्राउंड में ऐसे ही चला गया, तो मैंने देखा ये एक उनका वेयर हाउस था, उसमें बहुत रोल्स पड़े थे, अंधाधुंध रोल्स पड़े थे, कम से कम नहीं तो 2 या 3-4 टन माल होगा। तो उसमें क्या था, 20 इंच के होते हैं नॉर्मली फॉयल के सारे, वो कोई 18 इंच का, कोई 8 इंच का, कोई 12 इंच का, कोई ऐसे थे, लेकिन सब तरह का माल था, माल सारा ठीक था। वो कटिंग करते थे ना, जो बच जाता था वो रख देते थे। तो वो कहते थे हम इसको थ्रो अवे कर देते हैं, मतलब ऐसे भेज देते हैं वेस्ट करके। तो मैंने कहा अच्छा तो ये कैसे, इसका एक मैं ले लूँ, कहते हैं हाँ ले लो आप, थोड़े पैसे दे देना, बस इसका कार्टेज दे देना जैसे है। उसकी मैनेजर थी, तो वो, मैंने कहा अच्छा, मैं रोल ना 10-15 उठा के ले आया, ऐसे ही कुछ नहीं किया, आया, वीज़ा था 5 साल का वीज़ा होता था, कोई दिक्कत तो होती नहीं थी, 10 साल का वीज़ा होता था। ले आया, उस दुकानदार को दिखाया, दुकानदार ने आगे माल बेचा, उसका कहता माल दो। मैं कहा अच्छा, मैं कहा पैसे ला, पैसे ले लिए उससे, ₹1,00,000 ले लिया। मैं फिर वहाँ भागा। तो अच्छा वो क्या था, वो जो 60 रुपये का पीस था ना, मैंने उसको बोला मैं तेरे को 40 रुपये का दे दूंगा, लेकिन साइज़ का इसका कंस्ट्रेंट है, साइज़ 20 इंच नहीं हो सकता, 18 भी हो, 17, लेकिन इकट्ठा होगा वो, जो भी कहता मुझे मंजूर है। फिर मैंने उसको बोला तो केजी में ले ले। अब मैं वहाँ सपोज केजी से लेके आऊँ 2,000 रुपया, तो मैंने यहाँ पे 25,000 रुपये केजी बेच देता था। मैंने कंटेनर वहाँ से इम्पोर्ट करने, और वो सिर्फ 2 बंदों को, एक बॉम्बे में था बंदा, एक दिल्ली में था सदर बाज़ार में, उन दोनों को एक, और मैं हाई सीज सेल करते था, हाई सेल करते था, अपने यहाँ मंगाता ही नहीं था। तो सर मैंने ये कोई काम 2-3 साल किया, अपना काम तो मेरा चल ही रहा था, चल रहा था, लेकिन साथ में ये फॉइल्स का किया। फिर उसके बाद फॉइल तो फिर टकाटिंड हो गया, यहाँ पे आने शुरू हो गए जापान से, ये वो सब कुछ, लेकिन आई मेड मनी आउट ऑफ दैट सिंपली। That's interesting. Very, very interesting. So then again, I'm repeating again. Then when did you actually started investing more and more into labels? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। Self-adhesive अब मैं labels. आगे बताता हूँ। हाँ जी। 98 में या 9 में मेरी मुलाकात हो गई आपसे। आपने एक वो लगाया था प्रगति मैदान पे, वो था ऑर्थोटेक लगाई थी, और हम तो ठीक, पैसा तो था ही हमारे पास, कोई आपको
बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, वो भी तो बड़ी आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मेरे वो तक बड़ी ही रहेगी। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आपकी पूरी मशीन जो आपने लगाई थी, आपके फादर थे, फादर साहब बिल्कुल, शांतिलाल क्या नाम था? कीर्तिकांत जी। हाँ जी, हाँ। तो वो बड़ा प्यार करते थे, तो वो जब वो बैठे होते थे तो मैं वहाँ गया तो देखा एक ही पूरे हॉल के अंदर एक ही मशीन की आवाज़ चल रही है, बाकी सब शांत हैं। बाकी चल रही होती थी, शांत थी, पर वो खटाखट सारे आसपास सब भीड़ लगी होती थी। तो मेरा दिल आ गया उस मशीन पे, जैसे कहते हैं ना किसी लड़की को देखो दिल आ जाता है फर्स्ट साइड, तो मुझे दिल आ गया। मैंने कहा ये मशीन लेनी है। तो मैंने फादर को बोला, मैं कहा यार चलो ज़रा एक बार आप, तो यार तू ही देख ले कर ले। मैं कहा नहीं चलो सही, एक बार आपको बुजुर्ग साथ में होते हैं तो आप अच्छा लगेगा उनसे बात करते हुए। तो फिर उसके मेरी आपसे मुलाकात शायद हुई थी, Yes, है yes, ना? that was my first meeting with you. यस, देन यू मेट मी फर्स्ट टाइम एंड आई थिंक वी डेल्ट ऑल्सो Yeah, we dealt for that particular machine only, मशीन ओनली। which was on एंड the उसके show. बाद तो फिर Yeah, with the स्काइज द लिमिट, silsila, with the एक के silsila बाद चलता दूसरी, रहा. दूसरे के बाद Yes, तीसरी yes, चलता गया। absolutely, absolutely. और बस इस तरह फिर हमारा प्यार बढ़ता चला गया। आपके साथ हमने लेटर प्रेसेस ली अपना, उसके बाद फिर हमने दिनेश क्या क्या कहते हैं वो, एक कंपनी और थी दिस इधर स्पेन में, रोटाटेक। Rotatech, हाँ. तो फिर वी स्टार्टेड टेकिंग, मुझे था थोड़ा सा फ्लेक्सो का शौक, तो रोटेट लेना शुरू कर दिया। प्रोडक्शन बढ़ गई, 1 से 2 से 3 से 4, आज भगवान की दया से 15-14 प्रेसेस हैं मेरे पास। Wow, wow, that's और great. बस ये पैशन यही होगा कि स्टिकर लाइन के अंदर आ गए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू कि 2000 मतलब 5-6 के बाद मैंने अपने आप को आयरन कर्टन ही रखा। मेरे पे वो नहीं था कि मैंने बहुत बड़ा बनना है, नहीं। 2012 के अंदर कंपनी नेम्ड योर दिस अमेरिकन कंपनी CL क्या था, CCL? CCL अप्रोच्ड अस, शायद आपको पता भी होगा उसका। और उसने हमारे से सौदा कर लिया हमारी कंपनी का। लेकिन बड़ा स्मार्ट आदमी थे वो, बड़े स्मार्ट थे। जैसे कोई चीज़ 1 रुपए की कर ली उन्होंने हमसे, सारा NDA साइन हो गया, सब कुछ हो गया, सब CA ने सब काम कर दिया। ये मुबारक सब मिल गई, एविडेंसन से मिल गई, ये तेरे ये पूछना इसको सरदार जी को, हाँ जी, sorry, sir. इसने भी चढ़ा सा मुबारक हुआ, ये हुआ है। मैं कहा चलो कोई नहीं, ठीक है। जब हम पैसे आने की बात हो रही थी तो वो उन्होंने हमसे 1 रुपए के हमें सीधा 75 पैसे का ऑफ़र लगा दी कि नहीं जी हम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि हम रोटाटेक मशीन्स हैं आपके पास। गैलस होती तो एक आधी तो हम ले लेते। हमने कहा गैस ले लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है, आप ले लो। लेकिन उनकी नीयत ख़राब हो गई थी। जब नीयत ख़राब हुई तो फिर मैंने कहा मैंने देना ही नहीं। फिर उन्होंने कहा, बीच में CA कहता रहा, कहता नहीं, वो कहते हैं आप 75 में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 80 भी कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, तो मैंने वो नहीं किया उस वक्त। लेकिन उसके बाद फिर ये था कि दिल भी नहीं किया करने को। और फिर ये था कि हमारी 2011 में हमने शिफ्टिंग कर दी थी अपनी। एक हमारे पास 4 कंपनियाँ थी उस नारायणा में, और नारायणा के अंदर हमने, फादर की डेथ होगी 2009 में, तो हमने 3 तो डिस्पोज ऑफ कर दी, एक आज भी रखी हुई है 1200 गज की, और वो चलती नहीं है, उसको किराए पे दिया हुआ है। उसके बदले में हमने 5 एकड़ का ये एक प्लॉट जो है यहाँ पे अपना बादशाहपुर में गुड़गांव में ले लिया। अच्छा. लिया नहीं, लिया तो 89 में था। Okay. इसको हमने CLU लेके फैक्ट्री बना दी। So now the whole infrastructure is out there. Whole of infrastructure is there, and we have almost like 250 लाख 2.5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया हो गया। और हमारे पास जो बिल्टेड एरिया है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1,65,000। Wow, great. वी हैव 2 टावर्स, और अब हम उसमें काम करते हैं। और ये नहीं कि भाई हम बहुत चाहते हैं कि काम बहुत बढ़ा लें, बिकॉज आई हैव जस्ट 1 सन, उसके लिए बहुत है। कुछ किराए पे भी दिए हुए हैं और कुछ वैसे भी चल रहा है। Correct. So now let's talk about Label Manufacturers Association of India, which is known as LMAI. You are one of the founder director of LMAI. You know, if you remember, Amit, we were just 8 or 10, I think, people who first met in Bombay in some, इतना वो लॉजी सा होटल था, कोई इतना वो नहीं था। I remember it was a Days Inn Hotel in Days Inn Mumbai. Hotel, something like that. Yeah. We were, I think, 8 people. Yes. तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाई जाए, बॉडी बनाई जाए, एसोसिएशन बनाई जाए, जिससे कि कुछ थोड़ा सा इस फर्नेटरी का कोई भला हो सके, कुछ हम सोच सकें, कुछ कर सकें। बिकॉज उस टाइम में ये था कि काम प्रेशर सेंसिटिव का बढ़ता चला जा रहा था। आप भी दबा के 2 मशीनें हमको दी, 3 मशीनें और को दी, आपको भी लग रहा था कि बिजनेस बढ़ने वाला है, और पीपल
दे स्टार्टेड पोरिंग इन, मतलब कंपनीज जो होते हैं स्टार्टेड पोरिंग इन। तो मेहनत काफ़ी हुई इस लम्हाई के अंदर, बहुत मेहनत करनी पड़ी। आप लोगों ने की, हमने की, सब ने की, इसके अंदर मेहनत की। यस यस और आज मेरे ख्याल में कि ये है कि हमारी दोस्ती भी अच्छी है सबके साथ, और कंपटीटर भी हैं लेकिन बताते नहीं हैं। कोई अपनी फैक्ट्री में किसी दूसरे को बुलाता नहीं है जानबूझ के, सिर्फ आप जैसे बंदों को बुला लेंगे, हमको नहीं बुलाता। कहता है चिट्टा पता नहीं देख लेगा क्या करेगा उसके अंदर जाके, ये ना हो कि भाई हमारे को कस्टमर हमारा ले जाए, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। आई टेल यू अमित कि मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरा कभी किसी के साथ कंपटीशन नहीं हुआ। कोई आज आपको, यू वुड बी डूइंग पॉडकास्टिंग विद सो मेनी अदर पीपल आल्सो, आप कोई ये नहीं कह सकता आपको कि चड्डा जो था मेरा कंपटीटर था। चड्डे के कंपटीटर लोग बनने शुरू हो गए। मेरे लड़के लोगों ने तोड़े, कंपनियों ने तोड़े, मेरे मैनेजर्स को तोड़ा। जो तनख्वाह लेता था यहाँ पे हमारे पास 40,000 रुपया, उसको 1 लाख रुपये तनख्वाह दे दी, गाड़ी दे दी, मकान लेके किराए पे दे दिया। उसकी ज़िंदगी मतलब पूरी लग गई। जब देखा कि चड्डा, तो हम भी तो वो है ना लखनऊ घर घर नहीं, ये नहीं कहते, एक कहावत है, घर फूक के तमाशा देखते हैं। तो हमने भी घाटे में सौदा शुरू कर दिया देना, लॉस के अंदर माल बेचना शुरू कर दिया, और उनको निकाल दिया। उनको नहीं रखता। अब उन्होंने उन बंदों को भी निकाल दिया, क्योंकि जब उनके निकला ही को जूस ही निकलेगा नहीं तो कैसे करेंगे। करेक्ट वेरी ट्रू। तो हमने घर फूक के तमाशा भी देखा इस दौरान। लेकिन भगवान की दया ये थी कि तब अब हम काफ़ी सेटल हो चुके हुए हैं। हमें कोई हिलाने वाली बात वो नहीं है, ना ही हम हिलने वालों में से हैं, और ना ही हम चाहते हैं कि बहुत बड़े हम बन जाएं। हम नहीं, वी आर नॉट वेरी बिग, मीडियम क्लास हैं। चल रहा है अपना, ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। So today I not heard, everybody knows that you are now the president of LABI. Yes, by the And grace of why after so many years you've been the founder of the association, one of the founder director of the association, and I think 2001 it was been initiated, and today is 2024, so almost 24 years, and now you have taken the presidentship. What made you what made you hold it for the same? I mean, what happened? Why didn't you become the president? No, actually, I tell you what, no, very clearly I tell you, I'm not, that kind of a person, who can very much or speak like, or in front of the audience, or this and that, and moreover, I'm very comfortable kind of person. I enjoy my life. मैं अपने ऊपर कोई लाइबिलिटी लेना नहीं चाहता किसी किस्म की। मैं बहुत बोल्ड हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई भी काम होने वाला हो, मैंने पहले उसको किया है, बाद में अपनी लाइफ को जिया है। मैं कहता हूँ हर काम पूरा कंप्लीट होना चाहिए, हर चीज़ कंसोलिडेट की हुई है। तो मुझे ये था कि प्रेसिडेंट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ये बहुत भागने दौड़ने वाली चीज़ है। और जब मुझे इन सब लोगों ने बोला कि आप करो करो करो, मैंने कहा नहीं यार, मुझे अभी 1 महीना पहले हार्ट अटैक हुआ है, और मैं अभी उठाऊँ तो मुझे क्यों फंसा रहे हो। बट एवरीबॉडी प्रॉमिस्ड विद मी दैट मिस्टर चड्डा, यू जस्ट गो अहेड। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट guide us only, and on these terms and conditions। आप हमारे इंडस्ट्री के शेर कहा जाते हैं। अरे यार, थैंक यू वेरी मच। हम जिससे भी बात करते हैं तो सब कहते हैं जी चड्डा साहब है तो सब कुछ ठीक है। अरे नहीं, थैंक यू वेरी मच। आपका इस इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि कभी भी कुछ भी आपत्ति आई है, स्पेशली हमारी एसोसिएशंस को, जो हमारी LMAI एसोसिएशन है, वी हैव ऑलवेज सीन चड्डा साहब, you always come forward, you have initiated with the people around, you have negotiated with the people around and made it run, made it on. नहीं, आपका So बड़ा I think पन this है is the biggest thing, we are having the biggest asset we do have in LABI. माई प्लाई है, माई बहुत बड़ी चीज़ आपने कह दी है, बहुत बड़ा पन है आपका। मैं इतना बड़ा आदमी हूँ नहीं वैसे, We जितना have सोच रहे हैं। experienced it, so that's the reason I'm saying. बस एक्सपीरियंस यही है लाइफ के अंदर थोड़ा सा, कि कमिटेड हूँ मैं Yes, किसी you are चीज़ के लिए। Yes, yes. अगर मैंने किसी को पैसे भी देने हैं तो मुझे नींद नहीं आती, पहले पैसे देता हूँ, बाद में काम करता हूँ। चड्डा साहब, बहुत बातें हो गई, लेट्स गो बियॉन्ड लेबल्स। व्हेन आई से बियॉन्ड लेबल्स, व्हाट इज द पैशन इफ नॉट एट वर्क? देखो, my first passion is walking. Okay. I just get up very early in the morning and sleep again early in the, hours, 10 o'clock. By 10 o'clock I sleep, and by 4:45 I get up. Oh. Then I go for my morning walk, say by 5:30, जो भी 5:45, and then I come back by 7:30. Okay. और ये मेरा पैशन जो है बहुत सालों से है और चलता जा रहा है। इसी की वजह से थोड़ा हार्ट अटैक भी हुआ, तो वो आया भी, अटैक हुआ नहीं, वो बीच में कहीं वो थोड़ा सा मुझे उसकी वजह से
कोविड की वजह से ना एक वो आया क्या कहते हैं उसको यार, वो जो ब्लड का क्लॉट आया, क्लॉट है वही। वो निकल गया उस वक्त सुबह सुबह। तो उसी की वजह से हुआ कि मैं अच्छी वॉकिंग करता था और आया, निकल भी गया, उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया, That has helped तो you. वो अलग चीज़ हुई। और उसके बाद जो सेकंड मेरी जो पैशन है, जो बहुत बड़ा पैशन भी अपने लिए मैं कह सकता हूँ, जो मैं उसके बगैर मैं बिल्कुल नहीं हूँ, अच्छा जी। दैट इज सिंगिंग। सिंगिंग, सिंगिंग, क्या बात है। रियली। एट दिस एज, यू नो, आई एम ऑलमोस्ट लाइक 69। हम्म और मैंने, अगर आप देखोगे तो बाय द नेम ऑफ राजेश चड्डा सॉन्ग्स, मेरे यहाँ पे यूट्यूब के अंदर भी 500 गाना मिलेगा आपको। ओहो, वाओ, लेकिन वो 500 गाना 2 साल पहले का है। अच्छा जी। आवाज़ में शायद हो सकता है 19-20 का फ़र्क हो, हाँ हाँ। अब भी हो सकता है, बिकॉज मैं इतनी बातें करने के बाद मेरा थका हुआ है गला, तो शायद मतलब नहीं ज़्यादा बात कर सकता हूँ। But that singing you started during COVID times or it was before COVID? स्लाइटली बिफोर कोविड, Slightly. स्लाइटली बिफोर Okay. कोविड। Okay. लेकिन मैं कॉलेज के दिनों में गाता था। क्या बात है। कॉलेज के उसकी तो दिनों में बात ही गाता नहीं हुई सर। कभी बात नहीं हुई। हाँ, वो नहीं, लिटरली कॉलेज वाली भी बात कुछ हुई नहीं यार, वो आपके साथ। कहते हैं ना, फैमिली के अंदर काम में बहुत बिजी हो गया, काम में इतना मसरूफ था मैं। मैंने बोला ना कि मैं अपने आप में सेल्फ मेड आदमी हूँ, आपने देखा ही होगा। और इतना ज़्यादा मसरूफ हो गया कि मैंने बस ये सब चीज़ें भूल गया। बस मुझे एक ही रहा, काम काम काम, फैक्ट्रीज बनानी है। अच्छा, फिर क्या हुआ, 2012 के अंदर मेरे ब्रदर के साथ स्प्लिट अप हो गया। That's it. अब फैक्ट्रीज बनाई हुई हैं, फैक्ट्रियों को आपस में सारा बांटना करना, ये करना, मकान दुकान हर जगह नाम उसका भी था। तो ये करते कराते सारी ज़िंदगी, जब थोड़ा टाइम मिला तो फिर मेरी वाइफ इंसिस्टेड में कि भाई अब तू, कोई हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो उसने मुझे माइक दे दिया, कहते ये गाओ। मैं कहा मैं कैसे यार गा सकता हूँ, तो बता मुझे, मैंने ना कभी गाया ना कुछ अभी, नहीं गाना पड़ेगा आपको। बड़ा साहब ने कहा नहीं भैया गाओ, भैया गाओ। और मैंने ऐसे ही गा दिया एक गाना। वो गाना जब गाया तो मैंने यार, जब सुना उसको तो मैंने कहा यार ठीक ही लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा थोड़ा सा और इसको करो, ठीक तरह करो। प्रैक्टिस करते वो करते 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 प्रैक्टिस क्या करते 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 मैंने आज तक गाना कोई दोबारा, मैंने नहीं कि आज गाना मैंने ये आज गा रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर कहीं गा रहा हूँ, ऐसा नहीं अच्छा, है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, जो मुझे आता है मैं कहूँगा यार मैं गा लेता हूँ। नेचुरली। हाँ, नेचुरली, शुरू से कभी सीखा हो, कभी अपना कभी सुना होगा तो मैं गा देता हूँ। तो सर आज तो फिर अच्छा मौका है। यार मेरी आज तो आवाज़, अच्छा मौका है ना। आवाज़ का देख लो, मेरी हाथ का नहीं नहीं बड़ा सर, बुरा चलेगा। हाल आप है। जो एक दो लाइन जो आप कर सके प्लीज। आप तो वैसे भी नेचुरल सिंगर हो, तो फिर नहीं नहीं, हम नेचुरल लोग बाथरूम सिंगर हैं फिर भी, नेचुरल लेकिन आप तो नेचुरल सिंगर नेचुरल हो। वाली बात जो है ना, वो तभी होती है, मज़ा आता है जब माहौल बना हो वी सारा। वुड अप्रिशिएट इफ यू प्लीज, वी वुड चलो मैं अप्रिशिएट प्लीज एक आध गा प्लीज। के देता हूँ। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मोहे नींद ना आई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। क्या बात है सर, एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग, मैंने एब्सोल्युटली कर मेस्मराइजिंग। मुझे दिया। लगता है ये और होना चाहिए था, लेकिन आपने बंद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने कहा यार ये फिर मुश्किल हो जाएगा, नहीं नहीं। क्योंकि ना फिर वो थोड़ा सा आगे माइक ये वो सब कुछ है ना। सो इट सीम्स टू बी लाइक पैशन तो है ही है। वैसे आपको लगता होगा कि एवरी डे एक बार दो बार गा करके तसल्ली मिलती है आपको, या आपको हाँ जी, लगता है कि मेरा मैं ना पूरा नहीं होता हूँ तब तक मैं गाऊँ नहीं तब मेरे तक? घर में पूरा स्टूडियो बना हुआ है। अच्छा जी। आई हैव गॉट अ काइंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, यू नो। या तो उसके अंदर फिर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, जब कुछ करता हूँ तो रिकॉर्डिंग, तो अब तो मुझे दिल नहीं करता रिकॉर्डिंग करने को, कि अब बहुत हो गया, उम्र के सामने क्या करना है। बच्चे भी यार आजकल सुनते कहाँ हैं, एक दो बार सुन लिया सुन लिया। तो लेकिन मैं हर अल्टरनेट डे के अंदर गाता जरूर, 8 10 15 गाने मैं गाता हूँ रोज, मतलब हर अल्टरनेट डे में। इसको कंटिन्यू जैसे रखिएगा। आज जैसे है, हाँ जी, आज भी मैंने गाना है। बहुत अच्छा। तो अब ये होता है कि थोड़ा सा, अब जैसे मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, गला भी सूखा हुआ है कुछ इस तरह का, अगर मेरा यही खुला हो तो मैं इस आवाज़ को शायद इसमें 10 15 20% और मैं ऐड और कर सकता करेक्ट हूँ। तो ये पैशन एक है, वेरी ये नाइस। साथ ही जाएगा मेरे, और वो नहीं रहेगा इसमें। थैंक यू वेरी मच। चड्ढा साहब, कुछ ऐसी बातें जो आप अपने व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर्स को बताना चाहते हैं? आई मीन इन द सेंस,
I would like to ask one small question. Probably it might give you the clarity of your answer. That how would you like to be remembered? यार रिमेंबर की बात तो ये है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ किया है। मुझे कुछ कोई गम नहीं है कि मैंने कुछ चीज़ रह गई है मेरी तरफ से। और आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, आई टेल यू। आई हैव गॉट वन सन एंड वन डॉटर, बोथ आर वेरी वेल सेटल्ड। मेरा बेटा जो है वो SRCC का है, बेटी जो है वो भी अच्छे कॉलेज की पढ़ी है। उसके बाद शी डिड हर क्या कहते हैं फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और मेरे को बस ये है कि जो मैंने आज तक किया है, मैं चाहता हूँ कि बस मेरे बच्चे ना उस चीज़ को थोड़ा सा कायम रखें। मेरी खुशी इसी में है कि जो मैं इतना आज तक लेके आया हूँ, आज तक उन्होंने संभाला हुआ है, मुझे बहुत खुशी है। माई हैप्पीनेस इज डेफिनेटली ओवर देयर। कि थोड़ा सा बढ़ा भी रहे हैं, जब मैं कहता हूँ यार इसमें और कुछ ऐड करो तो कर देते। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट वे। सो आई एम दैट वे हैप्पीएस्ट पर्सन कि मेरी औलाद, मेरे बच्चा आदित्य चड्डा इज़ वेरी नाइस। मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ, बहुत अच्छी सुनता है। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। ये तो होगी आपकी फैमिली के प्रति। व्हाट अबाउट टू द वर्ल्ड? हाउ दे शुड रिमेंबर यू? टू द वर्ल्ड मैं एक चीज़ बताऊंगा कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कमिटेड रहा हूँ। और जब कमिटेड आदमी रहता है तो उसमें एक चीज़ ये रहती है कि जब आदमी कोई कमिट चीज़ करता है तो उसमें बोल्डनेस भी चाहिए होती है। अगर बोल्डनेस नहीं है आपके अंदर तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं लाइफ का। करेक्ट। तो मैं इसके साथ बोल्ड बहुत रहा हूँ। मैंने अपने कस्टमर्स को भी सबसे पहले अपना ये बताया कि पहले मैं रिलायबल हूँ, आप मेरे पे ट्रस्ट करो। तब उन्होंने मुझे काम दिया। आज तक मेरे जो पुराने कस्टमर्स हैं, आज मेरे मतलब पुराने दादाजी के टाइम के कस्टमर्स जो हैं, वो मुझे यही कहते हैं कि एक राजेश चड्डा है जो कमिटमेंट इसकी बहुत अच्छी है। सो मैं आई एम अ मैन ऑफ कमिटमेंट। सो मेरी एक सिर्फ ज़िंदगी में एक चीज़ है, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा। मैं जो कह दूं वो करूंगा, कुछ भी हो जाए। सो दैट वे आई जस्ट वांट टू, एक सलमान खान है, टेल एवरीबॉडी। बॉलीवुड में एक सलमान खान है और हमारे इंडियन लेवल इंडस्ट्री में आप हो। इसका मतलब नहीं कमिटमेंट कर दी सलमान तो खान पूरी तो करके यार बहुत रहेंगे। बड़ी चीज़ है, मैं तो कुछ हुई नहीं। लेकिन कहने का मकसद यही है कि आप जो भी कुछ काम करो ज़िंदगी के अंदर, उसको ऐसा करो कि लोग थोड़ा सा ये देखें कि यार और उसने किया था तो ऐसा होना चाहिए। तो आज तक गलत भी काम होते हैं, ये नहीं गलत नहीं काम होते, गलत काम भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। लेकिन जो रह जाता है वही आपका अच्छा है। जो नहीं रहता वो तो लोग शायद जो जिनके साथ बुरा हुआ है वो याद रखेंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो अच्छा है वो जो दुनिया सामने आ रही है उनको सबके साथ तो बुरा नहीं कर सकता मैं, तो अच्छा रहे। थोड़ा सा एक फायर राउंड करते हैं आपके साथ, ठीक है ना? मैं पता ये नहीं हमारी प्रथा है हमारी शो की, हम एक फायर राउंड करते हैं। Okay. आप इसका जवाब एक सेंटेंस, एक वर्ड या दो सेंटेंस, जैसे भी आपको देना हो आप दे सकते हैं। इफ आई आस्क यू हैप्पीनेस, हाउ डू यू डिस्क्राइब दैट? Happiness is I am very much happy in the life that I have got everything by the grace of God. Okay. Any regrets? Regrets are always there in the life, that whenever there are so many things, that if I would have done this thing, I could have been this much, or if I would have taken that thing, I would have been this much with me. Regrets तो है लाइफ के अंदर, सबके ही होते हैं यार। You consider to be a good traveler or a foodie, or both? Both. You love traveling? I love traveling as well as I love food. And what is your favorite destination? My favorite destination is Switzerland. Switzerland. I have been there almost like 40 times, maybe more than that. So that means every alternate year or every year you go? The last year I was there, but before that, I mean last year, 2-3 years I didn't go because of COVID. But otherwise, I used to have my birthdays of my wife and me, because my wife's birthday falls on 27th and my birthday falls on 25th. Okay. So we celebrate the birthday over there. Okay. एंड साल में 2 बार तो हमने जाना ही जाना है, और स्विट्ज़रलैंड ही जाना है। अच्छा जी। हाँ, लुजरन जाना है, जर्मेट जाना है, मतलब इधर उधर जाना है, सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में ही जाना है। ओके। When you talk about food, what is your favorite dish or cuisine? मेरी फेवरेट डिश जो है ना, सच बताऊँ तो नॉन वेज बहुत अच्छी थी, बट अब थोड़ी ड्यू टू द एज अब थोड़ा सा मैं कम हो गया हूँ। लेकिन आई वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ चिकन, मटन, फिश, बट अभी मौका लगे तो छोड़ता नहीं हूँ।
Acha. But then you are becoming more like a vegetarian diet? Or? Not vegetarian. It cannot be. I will not be. Correct. I will not be. Okay. Even my wife, at one stage of time, she left this non-veg. लेकिन जब उसने देखा कि ये तो क्या होता है कि जब जाओ तो ये भी कुछ नहीं खाते और इनका बेचारों को रह जाता है, तो she also started it again. But थोड़ा बहुत लेती है वो. मैं भी थोड़ा ही लेता हूँ, ज़्यादा नहीं. बहुत थोड़ा हो गया. Okay. What do you choose between faith and religion? I think I believe in both. In both. Yes. Faith as well as religion. As well as religion. Yes. Okay. So, okay, not further question on that, but the best stress buster for you is what you just said about the passion, right? Passion is Or my is it stress something buster else? is my song. I just sing The best one. best one. This is my stress buster. Okay. And if I talk about you to describe yourself to be more professional, or you believe in more professionalism or relationship? Relationship. Always? Always relationship. That's what I'm saying. That still I have clients, who were doing business. Their forefathers were doing business with their forefathers, and still I have those clients with me. It's all relationship, So it's going to be 100 years of legacy. Of course, 1924, my grandfather started, and it's again 24. Yeah, true. But you talk of after partition, say 50, 1950. So once we talk about 1950 and now, it's almost 75 years again. Correct. It's quite a bit time. Very true. Yeah. Nice talking to you, Chadha Sahab. Thank you very much, It was Amit our pleasure that you are on my show. Thank you very And, much. Look forward and to give you a wishness that be happy always. Keep up your passion. Don't lose your passion at all. Whatever do happens in your life, and keep smiling like this. Thank you very much. Thank you so Thank much. you very Thank you much. so much for coming. Thank you so very much.